السلام علیکم ناظرین، ایشیا بزنس ویک پرائم کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی تجارتی اقتصادی خبروں پر۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ گوادر مستقبل کا دبئی ثابت ہوگا، برطانوی اخبار۔ لوگوں پر مبنی ترقی پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں بھارتی وزیر اعظم۔ پیٹرولیم کمپنی ہینان میں پھنسی گاڑیوں کو ایندھن کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے۔ تربیلا چوتھے توسیعی پن بجلی منصوبے کا پہلا یونٹ آپریشنل ہو گیا۔ بھارتی وزیر خارجہ کا بھوٹان کو دو طرفہ تعلقات مزید بڑھانے پر زور۔ NEC کی جانب سے ایشین پیسیفک نمائش کا انعقاد۔ وفاقی وزیر پاور ڈویژن سے پاکستان میں امریکہ کے سفیر کی ملاقات۔ شیعہ مسلمان کے روحانی پیشوا کی نئی دہلی میں مودی سے ملاقات۔ جاپان میں واشیکو ورلڈ چیلنج میں غیر ملکی شیفز کی شرکت۔ پاکستان میں چین کے سفیر کا شنگھائی تعاون تنظیم کے سیمینار سے خطاب۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کا شہر گوادر مستقبل کا دبئی ثابت ہوگا۔ یہ شہر پاکستان اور چین دونوں کے لیے اہم شہر ہے۔ اس سے ایشیا میں طاقت کا توازن بھی تبدیل ہوگا۔ برطانوی اخبار نے اپنی ایک رپورٹ میں پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا کہ چین کی جانب سے گوادر شہر میں سرمایہ کاری سے دونوں ممالک کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ اخبار کے مطابق پاکستان کو بجلی اور توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے اور بجلی کی طلب اور رسد کے درمیان فرق کو کم کرنے اور ترسیلی اور مواصلاتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اسے 30 سے 35 ارب ڈالر درکار ہیں۔ پاکستان اپنے ذرائع سے اتنی بڑی رقم فراہم نہیں کر سکتا۔ ایسے میں چین کی جانب سے گوادر بندرگاہ تک رسائی کے لیے شروع کیا جانے والا اقتصادی راہداری کا منصوبہ پاکستان کے لیے ایک مثبت پیش رفت ہے۔ چین کی جانب سے اقتصادی راہداری منصوبے پر 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی، جس کے نتیجے میں پاکستان کی قومی معیشت میں مجموعی طور پر بہتری آئے گی، جبکہ چین کو اپنا مال یورپی منڈیوں تک پہنچانے کے لیے ایک بہترین اور مختصر راستہ میسر آ جائے گا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ حکومت کی توجہ کا مرکز نہ صرف ملازمتوں پر مبنی ترقی بلکہ لوگوں پر مبنی ترقی بھی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ حکومت کی توجہ کا مرکز صرف ملازمتوں پر مبنی ترقی ہی نہیں بلکہ لوگوں پر مبنی ترقی بھی ہے۔ مودی نے ان خیالات کا اظہار اتر پردیش انویسٹر سمٹ 2018 کے دوران کیا۔ اس موقع پر مودی نے کہا، ہماری سرکار چاہے کیندر میں ہو یا راج میں جاب سینٹرک کے ساتھ بھی پیپل سینٹرک گروتھ پر بھی زور دیتی رہی ہے۔ ایک ایسی ارتھ ویوستھا جس میں دیش کے غریبوں کا فائنانشل انکلوژن بھی ہو، جو غریبوں کو ساتھ لے کر کے چلے۔ اس لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے ساتھ ساتھ ہم ایز آف لیونگ کو بھی پراتھمکتا دے رہے ہیں۔ یہ اجلاس اتر پردیش ریاست کے ریاستی دارالحکومت لکھنؤ میں اپنی نوعیت کا پہلا اجلاس ہے۔ مودی کا کہنا ہے اتر پردیش میں سرمایہ کاروں کا سرخ فیتے کا سامنا کرنے کے بجائے ریڈ کارپٹ سے استقبال کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مودی کا مزید کہنا تھا، اب یوپی میں ادیمیوں کے لیے ریڈ ٹیپ نہیں، ریڈ کارپٹ ہوگا۔ آج انڈسٹری کے لیے جس ڈیجیٹل کلیئرنس سسٹم کو لانچ کیا گیا ہے وہ بھی اسی کا ادھارن ہے۔ یہ ایک سنگل ونڈو پورٹل ہوگا جس کے مادھیم سے ادیمیوں کو ایک طے سیما میں آن لائن پرمیشن مل جایا کرے۔ مودی نے سرمایہ کاروں کو ریاست میں بدلتے ماحول کے بارے میں آگاہ کیا۔ 2 روزہ تقریب میں 8.5 بلین ڈالر مالیت کے 25 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جا چکے ہیں۔ چین کی پیٹرولیم کمپنی سینوپیک ہینان میں شدید دھند کے باعث پھنسنے والی گاڑیوں کو ایندھن کی فراہمی یقینی بنا رہا ہے۔ سینوپیک کی ہینان برانچ ہزاروں گاڑیوں کو ایندھن فراہم کرنے کے لیے تمام کوششیں کر رہی ہے، جو کہ دھندلے موسم کے باعث پھنس گئی تھیں، جس سے فیری سروسز بری طرح متاثر ہو گئی ہیں۔ شدید دھند کے طویل عرصے نے جنوبی چین میں جزیرہ صوبہ ہینان کے اہم گیٹ وے چیونگزو اسٹریٹ پر فیری کے راستوں میں رکاوٹ پیدا کر دی ہے، جس سے جزیرے پر اسپرنگ فیسٹیول کے موقع پر چھٹیاں منانے کے بعد گھر واپس آنے والے ہزاروں مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہینان میں سینوپیک گروپ کی برانچ کمپنی نے تنگ سڑکوں پر عارضی فلنگ اپ پوائنٹس لگا دیے ہیں اور ری فیولنگ سروسز کی پیشکش کے لیے
2 तेल के ट्रक भी रवाना कर दिए हैं। चेंगमे काउंटी और मैकन देहात में ऑयल डिपो पेट्रोल की तकसीम के लिए 24 घंटे चल रहा है। ब्रांच कंपनी के मैनेजर के मुताबिक कस्टमर्स टेलीफोन या पैगाम रसाई की मकबूल ऐप वी-चैट के जरिए राब्ता और रीफ्यूलिंग की दरख्वास्त कर सकते हैं। ब्रांच कंपनी जुमेरात तक तबाहाल गाड़ियों को तकरीबन 28,000 लीटर तेल और फंसे हुए मुसाफरों को 160 से जायद पीने वाले पानी के केसेस और 600 गर्म खाने फराहम कर चुकी है। हिनान, जो कि अपने गर्म आबो हवा और साफ हवा के लिए जाना जाता है, लूनर न्यू ईयर हॉलीडे के दौरान चीनी सयाहों के लिए मकबूल मकाम है। सूबाई सयाहती ब्यूरो के मुताबिक 2017 में एक हफ्ते तक जारी रहने वाले स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान सूबे में 5.15 मिलियन सयाहों की आमद रिकॉर्ड की गई। तरबेला चौथे तौसीई पन बिजली मंसूबे का पहला यूनिट ऑपरेशनल हो गया, जिससे कौमी ग्रिड को बिजली की फराहमी शुरू हो गई। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी मार्च के दूसरे हफ्ते में मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। तरबेला चौथे तौसीई पन बिजली मंसूबे का 470 मेगावाट सलाहियत वाला पहला यूनिट ऑपरेशनल हो गया, जिससे कौमी ग्रिड को बिजली की फराहमी का आगाज हो गया। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी मार्च के दूसरे हफ्ते में मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने मंसूबे का दौरा किया। उन्होंने मंसूबे की कामयाबी से तकमील पर प्रोजेक्ट इंतजामिया, कंसल्टेंट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तरबेला के चौथे तौसीई मंसूबे के तहत तरबेला डैम की सुरंग नंबर 4 पर बिजली पैदा करने के लिए 3 यूनिट नस्ब किए गए हैं और हर यूनिट की पैदावारी सलाहियत 470 मेगावाट है। पहले यूनिट से बिजली की पैदावार शुरू हो चुकी है, दूसरे यूनिट से अप्रैल के आखिर तक, जबकि तीसरे यूनिट से मई के आखिर तक बिजली की पैदावार का आगाज हो जाएगा। चेयरमैन वापडा ने बताया कि वापडा इस साल जून तक अपने 3 जेर जमीन पन बिजली मंसूबों नीलम जहलम, तरबेला का चौथा तौसीई मंसूबा और गोलन गोल को मरहलावार मुकम्मल करते हुए नेशनल ग्रिड में 2,487 मेगावाट सस्ती पन बिजली का इजाफा करेगा। तरबेला के चौथे तौसीई मंसूबे की तकमील पर तरबेला हाइड्रल पावर स्टेशन की पैदावारी सलाहियत 3,478 मेगावाट से बढ़कर 4,888 मेगावाट हो जाएगी। मंसूबे से सालाना तकरीबन 30 अरब रुपए की आमदनी होगी और ये 3 साल की कलील मुद्दत में अपनी तामीर पर आने वाली लागत पूरी कर देगा। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने भारत भूटान सिफारती ताल्लुकात की 50वीं सालगिरह पर भूटान को नई दिल्ली के साथ 2 तरफा ताल्लुकात मजीद बढ़ाने पर जोर दिया। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने भूटान को नई दिल्ली के साथ 2 तरफा ताल्लुकात मजीद बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों हमसाया ममालिक सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। स्वराज नई दिल्ली में रॉयल भूटानीज एम्बेसी में भारत भूटान ताल्लुकात की 50वीं सालगिरह के जश्न में मुनक़िदा तकरीब से खिताब कर रही थीं। इस मौके पर स्वराज का कहना था, A year for India-Bhutan partnership as we celebrate the accomplishments of the last 5 decades of our time-tested and special ties. It is also an opportunity for us to reflect on how well we could advance this unique partnership to respond to hopes and aspirations of our two peoples, of our common prosperity and a better future. We are proud of the special and exemplary ties of friendship. उनके भूटानी हम मनसब ल्योम्पो डेमचो डोरजी भी तकरीब में शरीक हुए, जो कि स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए भारत में 3 रोज़ा दौरे पर थे। भारत और भूटान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात 1968 में कायम हुए थे, जो कि दोनों अतराफ की जानिब से आला सतही दौरों और मुज़ाकरात के साथ बरकरार हैं। भारत भूटान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। गुज़िश्ता साल भारत डोकलाम में चीन के खिलाफ 73 रोज़ तवील तातुल के खिलाफ भूटान के साथ खड़ा रहा। डोकलाम तीनों ममालिक के दरमियान सैरुखी जंक्शन है। NEC ने आलमी सतह पर बेहतरीन और आला टेक्नोलॉजीज मुतारिफ कराने के लिए एशियन पैसिफिक नुमाइश का इनेकाद किया। स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की तलब दुनिया भर में पाई जा रही है और थाईलैंड का दारुल हुकूमत बैंकॉक भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। बैंकॉक ने हाल ही में एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें अवामी खिदमात से लेकर शहरी इंतजाम, हेल्थ केयर, पब्लिक सेफ्टी, इंटरप्राइज मैनेजमेंट और स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में कारोबारी मुंतकली समेत मुख्तलिफ शोबों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज की तैनाती में NEC की जदीद पेशरफ्तों का मुजाहरा किया गया, जिसका मकसद तहफ़्फ़ुज़, सलामती, अफादियत, बराबरी और स्मार्ट सोसाइटी की जानिब गामज़न होना जैसे इक़दार का एहसास पैदा करना है। NEC तरक्की के हर मरहले में लचक के हवाले से शहरों को मुश्किलात का सामना करने में मदद फराहम करती है।
स्मार्ट सिटी के लिए हल कई नस्लों से आला मयार की शहरी जिंदगी को यकीनी बनाने के लिए किए गए हैं, जो कि अब भी महफूज, आरामदेह और माहौल दोस्त माहौल में अहम किरदार अदा करते हैं। इस हवाले से NEC के CEO तकाशी निनो का कहना था। NEC がデジタルトランスフォーメーションを最大限に活用して、我々の AI、これをもっともっと使っていきたいと。現在、社会ではさまざまなところで働き方改革の取り組みが行われており、NEC も進めています。企業や産業、都市、あるいは人に活力を与え、सस्टेनेबल ना शकाई को जिसके इंस्टे की मस। NEC में रफ्तार और दुरुस्तगी के एतबार से दुनिया में पहले दर्जे का चेहरा शनाख्त करने वाला सिस्टम मौजूद है। इस वक्त ये टेक्नोलॉजी अवामी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती बेहतर बनाने के लिए दुनिया भर में भेजी जा रही है। NEC टेक्नोलॉजी इसके बायोमेट्रिक तस्दीक के बाइस निजी और अवामी दोनों शोबों को फ़वाइद फराहम कर सकती है। इस हवाले से तकरीब में शरीक एक शख्स का कहना था। จริงแล้วผมเชื่อว่าเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับจะทำให้ความแม่นยำของการ identify ตัวตนของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเข้าออกเมืองหรืออะไรถูกต้องมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดในส่วนของปัญหาอาชญากรรมอะไรต่างๆได้ดีขึ้นครับ उन्होंने प्रेजेंटेशंस, रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ और सेमिनार्स के ज़रिए मुख्तलिफ सनती रहनुमाओं से भी तरबियत हासिल की, जो कि इंसाइट्स फराहम करते हैं कि किस तरह पैदावार को बढ़ाने और हमेशा आगे रहने के लिए इन टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जा सकता है। NEC के स्मार्ट हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस होटल मालकान को मुस्तनिद और बेहतर खिदमत फराहम करने के लिए IT प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं, जिससे होटलों में ठहरे मेहमान आरामदेह और खुशगवार तजुर्बे से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। एशिया में 2014 में NEC इनोवेटिव सॉल्यूशंस फेयर इवेंट्स के क़याम के बाद से ही इसे सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में बेहतर रद्द-ए-अमल हासिल हुआ है। मज़ीद बरआं NEC दुनिया भर में 30 साल से ज़ायद का तजुर्बा रखते हुए IT सॉल्यूशंस की फराहमी के साथ बेहतरीन साख की हामिल है। पाकिस्तान के वफाकी वजीर पावर डिवीजन सरदार उवैस लगारी से पाकिस्तान में अमरीका के सफ़ीर ने मुलाकात की। पाकिस्तान में अमरीका के सफ़ीर डेविड हेल ने कहा है कि पाकिस्तान में पहले मुतबादिल तवानाई इंस्टीट्यूट के क़याम और तवानाई पॉलिसी की तश्कील में अमरीका पावर डिवीजन के साथ मावनत के लिए इक़दामात को यकीनी बनाएगा। उन्होंने ये बात मंगल को यहाँ वफाकी वजीर पावर डिवीजन सरदार उवैस लगारी से मुलाकात में कही। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि अमरीका कौमी तवानाई पॉलिसी की तश्कील और कौमी बिजली प्लान के ज़मन में भी पाकिस्तान के साथ मावनत का भी जायज़ा लेगा। मुलाकात के दौरान वफाकी वजीर ने अमरीकी सफ़ीर को बताया कि तवानाई पॉलिसी और कौमी इलेक्ट्रिसिटी प्लान की तश्कील के लिए वफाकी हुकूमत ने तमाम सूबों और वफाकी यूनिटों के साथ मशावरत का आगाज़ कर दिया है। इस ज़मन में वफाकी हुकूमत ने सर्विस प्रोवाइडर समेत तमाम मुतालिका फरीकों की तरफ से पेश करदा तजावीज़ को मलहूज़ खातिर रखने का फैसला किया है। शिया इस्माइली मुसलमान बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस शाह करीम आगा खान ने नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। शिया इस्माइली मुसलमान बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस शाह करीम आगा खान ने नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रिंस शाह करीम आगा खान भारत में 11 रोज़ा दौरे पर हैं, जिस दौरान वो भारतीय क़यादत के साथ मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने भारत के नायब सदर वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मयारे ज़िंदगी को बेहतर बनाने और सब जगह की तख्लीक के मकसद से पार्क का इफ्तिताह किया। 90 एकड़ ज़मीन पर फैली सुंदर नर्सरी 16वीं सदी का हेरिटेज गार्डन कॉम्प्लेक्स है, जो कि नई दिल्ली में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुमायूं के मकबरे के मुतसिल में वाक़ है। ये कॉम्प्लेक्स आगा खान हिस्टोरिक सिटीज़ प्रोग्राम के तहत बहाल किया जा रहा है। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के बानी और चेयरमैन हैं और शिया इस्माइली मुसलमानों के 49वें मौरूसी इमाम हैं। टोक्यो में द वॉशिको वर्ल्ड चैलेंज के आखिरी राउंड का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया भर से गैर मुल्की शेफ्स ने जापानी पकवान बनाने की अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। टोक्यो ने पकवान मुकाबला द वॉशिको वर्ल्ड चैलेंज के आखिरी राउंड का इनेकाद किया, जिसमें दुनिया भर से जापानी पकवानों के शेफ हिस्सा लेते हैं और जापानी खानों के लिए अपनी तकनीकी महारत और शौक का मुजाहरा करते हैं। अपनी नौयत का 5वां मुकाबला गैर जापानी शेफ्स के लिए जापान के वजारत बराए ज़राअत, जंगलात और माहीगीरी की जानिब से मुनक़िद किया गया। रवा साल मुकाबले में 21 ममालिक से 100 से ज़ायद शेफ्स ने शिरकत की। पहली मरतबा दुनिया भर में 6 मुख्तलिफ शहरों में क्वालिफाइंग मैचेस का इनेकाद किया गया। टोक्यो में मुनक़िद होने वाले रवा साल के मुकाबले के आखिरी मरहले में उमामी थीम रखी गई। 6 हतमी उम्मीदवारों को उमामी की नुमाइंदगी करते हुए 5 पकवान बनाने का कहा गया।
उमामी को जापानी पकवान में मसालादार जायके का जरिया कहा जाता है। 5 बुनियादी जायकों मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन और मसालेदार में से एक ये जायका पकवान के तमाम जायकों का अहम जुज है। इस हवाले से जापान की वजारत बराए ज़राअत, जंगलात और माहीगीरी से काज़ुहिरो शिमानी का कहना था। 海外に日本食レストランの数、昨年7月に調べたところですね、11万8000件と4年前の約2倍になっております。和食という本物の和食というものを知っていただくということでですね、そういう料理人にクローズアップするためにですね、この大会を開いております。2013 में वाशिको को यूनेस्को इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पर रजिस्टर्ड किया गया था। यूनेस्को की फहरिस्त में वाशिको के रजिस्ट्रेशन से जापानी पकवानों को आलमी सतह पर फरोग देने का बेहतरीन मौका मैसर हुआ। इस हवाले से जापानी कुलिनरी एकेडमी के चेयरमैन योशिहिरो मुराता का कहना था। いろんな国で、こうやりたいわけですよ。それから、これが世界中で話題になって有名になって、その和食の、ワールドチャンピオンシップみたいになって、こう誰が優勝したっていうのが世界でニュースになるようなぐらいになると嬉しいですよね。ये मुकाबला हर एक के लिए खुला है जो कि जायके और मेहमान नवाजी के तवाज़ुन की अक्कासी करते पकवानों की तख्लीक का चैलेंज लेना चाहते हैं, जो कि जापानी पकवान की रूह है। इस मौके पर मुकाबले में शरीक एक शख्स का कहना था। ผมทำงานมาเกือบ70 ปีครับก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ความสามารถของตัวเองว่าอยู่ในระดับไหนครับ जापानी पकवानों की मकबूलियत दुनिया भर में फैली है। अगरचा जापानी रेस्टोरेंट्स के मुतादिद शेफ्स को जापान में तरबियत नहीं दी गई, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि उन्हें इन पकवानों की बेहतर तौर पर मालूमात नहीं। रवां साल का फातेह अमरीका से शेफ था। दूसरी पोजीशन इटली और अमरीका से 2 शेफ्स को मिली। ये मुकाबला जाहिर करता है कि ऐसे शेफ मौजूद हैं जो कि दुनिया भर में जापानी खाने की महारत को तेज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर याओ जिंग ने शंघाई ताउन तंजीम के सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन मुख्तलिफ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात से मुतालिक एक दूसरे की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर याओ जिंग ने कहा कि चीन पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मंसूबों के लिए इमदाद फराहम करेगा। अफगानिस्तान में इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान का विजन 2025 तरक्की के लिए मुश्तरका ताउन और कोशिशों की ज़रूरत पर जोर देता है। मंगल को यहाँ शंघाई ताउन तंजीम चैलेंजेस और मौक़े के उन्वान से सेमिनार से खिताब करते हुए चीन के सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन मुख्तलिफ इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात से मुतालिक एक दूसरे की हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मंसूबों के लिए इमदाद फराहम करेगा। आइए अब डालते हैं एक नज़र एशियाई स्टॉक मार्केट में रवां हफ्ते होने वाली कारोबारी सरगर्मियों पर। एशियाई स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते मंदी का रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज जापान निकी इंडेक्स 1.44% कमी के साथ 22,068.24, हैंगसेंग 1.36% कमी के साथ 30,844.72 पर बंद हुआ, जबकि शंघाई और ताइवान के कारोबारी हिस्स की कीमतों में मंदी का रुझान देखा गया। नाजरीन, जायजा लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दौरान होने वाली कारोबारी सरगर्मियों का। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस हफ्ते तेजी का रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज 100 इंडेक्स 244.48 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 43,239.44 पर बंद हुआ। और अब करेंसी रेट्स। ये थी अब तक की खबरें एशिया बिजनेस वीक प्राइम में। मिलते हैं अगले हफ्ते मजीद खबरों के साथ। अपनी मेजबान बुशरा खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।